Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Since we have completed chapter 3 Black Beauty of our English literature book as we said in our last video, and today we are going to start our new chapter, and the number of this new chapter is 4, and the name of this chapter 4 is Going Downhill on a Bicycle, a Boy's Song, Physical Activities and Sports. Okay, so students, today we will read this new chapter 4 Going Downhill on a Bicycle, a Boy's Song in our 2 days class. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today we are going to start this new chapter. Okay, and it's a really very interesting poem. Okay, so students, today's our topics are first summary of first to third stanzas of this chapter 4 Going Downhill on a Bicycle, a Boy's Song, and our next topic is 8-line poem of this chapter 4, which we will read and note down this poem in our Fair English Literature notebook in our 2 days class. Okay, so students, firstly we are going to read and explain summary of first to third stanzas of this chapter 4. Okay, so before it let's see the name of this chapter. Okay, the number of this chapter is chapter 4 Going Downhill on a Bicycle, a Boy's Song. Going down means students होता है नीचे आना, ये नीचे होता है ना. Hill means पहाड़ी, on means पर, A means एक, bicycle means cycle, a boy's song, A means एक, boys means लड़के का. Okay, so student apostrophe है ना, it's mean होते काकी के, ये रिलेशन को शो करता है. किसी भी वर्ड के अगर हेड में कॉमा लगाने के बाद आफ्टर इट एस हो, ओके, तो इट्स मीन होते हैं काकी के. इट्स मीन ये जो apostrophe होता है इट्स मीन काकी के होता है, ये रिलेशन को शो करता है. ओके, तो बॉय सॉन्ग मीन्स लड़के का गाना. गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल, अ बॉय सॉन्ग, इट्स मीन पहाड़ी से साइकिल पर नीचे उतरते हुए एक लड़के का गाना. ओके, फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स. So students, your chapter 4 Going Down Hills on a Bicycle, a Boy's Song, it's related to physical activities and sports. Okay, in this chapter we will read about physical activities and sport. ये जो आपका चैप्टर 4 है ना, ये शारीरिक गतिविधियों और खेल से संबंधित है. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट के बारे में रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, now that we know about cycling, let us read a poem about a boy who cycles down the hill. Okay, now means आप that means जो हम means we means हम no means जानते हैं, about means बारे में, cycling means साइकिलिंग करना, साइकिल चलाना. ओके ओके, नाउ दैट वी नो अबाउट साइकिलिंग, इट्स मीन कि क्योंकि अब हम साइकिल के बारे में जानते हैं. ओके, हम साइकिल के बारे में अब सब कुछ जानते हैं. ओके, क्योंकि हम साइकिल करते हैं ना. ओके, सभी साइकिल करते हैं ना, तो हम चूँकि साइकिल चलाते हैं. ओके, तो सभी लोग साइकिल के बारे में जानते हैं. एंड लेट अस रीड अ पोम अबाउट अ बॉय हु साइकल्स डाउन द हिल. लेट अस में चलिए रीड मीन्स पढ़ते हैं. मीन्स एक, पोम मीन्स कविता, अबाउट मीन्स बारे में, अबाउट मीन्स एक लड़के के, हु मीन्स जो, साइकल्स डाउन इट्स मीन साइकिल से नीचे आ रहा है, द हिल. ओके, इट्स मीन हिल पर. ओके, हिल पर है और साइकिल से नीचे आ रहा है. लेट अस रीड अ पोम अबाउट अ बॉय हु साइकल्स डाउन द हिल. इट्स मीन कि चलिए साइकिल पर हिल से नीचे उतरते हुए, हिल से नीचे आते हुए एक लड़की के बारे में इस कविता को पढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स रीड दिस पोम. Firstly, students, look at this first number stanza of this chapter. Okay, with lifted feet and hands still, I am poised and down the hill. Dart with heedful mind, the air goes by in a wind. Okay, तो students, here the mean with lifted feet. It's mean कि boy कह रहा है कि मेरे दोनों पैर. Okay, feet means पैर, lifted means student, here the mean of lifted that उठे हुए. Okay, तो बॉय बोल रहा है कि मेरे दोनों पैर हवा में उठे हुए. ओके, एंड हैंड्स स्टिल. ओके, और जो हैंड है, ओके, जिसके हैंड्स हैं, जो हाथ है, ओके, तो एक हवा में उठा हुआ है, ओके, एयर में उठा हुआ है, और एक ने साइकिल को बहुत अच्छे से, बहुत ही टाइटली कैच कर रखा है, होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है. ओके, तो ये बॉय बोल रहा है. ओके, दिस इज अ बॉय. ओके, ये बॉय है जो साइकिलिंग करते हुए हिल से वापस आ रहा है. ओके, जो साइकिलिंग करते हुए हिल से नीचे उतर रहा है. ओके, एंड वी कैन सी इट्स ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी दिख रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है. ओके, तो स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ दिस फर्स्ट लाइन इज विथ लिफ्टेड फीट एंड हैंड्स स्टिल. ओके, इट्स मीन ये जो बॉय है ना, वो बोल रहा है कि मैंने मतलब पैर, जो बॉय कहता है कि मेरे दोनों पैर हवा में लिफ्टेड है. इट्स मीन मेरे दोनों पैर हवा में उठे हुए, और मेरे जो हैंड्स है ना, हाथ है, उनमें से एक हैंड को मैंने अपने हवा में, एयर में उठा रखा है, और एक हैंड ने एक, और मेरे जो सेकंड हैंड है, दूसरा हाथ है, उसने क्या किया, साइकिल को बहुत ही
अच्छे से पकड़ रखा है। ओके, वी कैन सी दिस पिक्चर, देखो उसके जो लेग्स है वो एयर में लिफ्टेड लग रहे हैं ना, हवा में उठे हुए लग रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स इसका जो हैंड्स है ना, इसके जो हाथ है, तो वन हैंड इसने राइज किया हुआ है, उठा के रखा हुआ, और वन हैंड से इसने अपनी साइकिल के हैंडल को बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखा है, पकड़े हुए रखा है ना। ओके, तो यही बोल रहा है, ये बॉय बोल रहा है कि पैर बॉय कह रहा है कि मैंने दोनों पैरों को हवा में उठा के रखा है। ओके, मेरे दोनों पैर हवा में उठे हुए, और जो हैंड्स है ना उसमें से एक हैंड राइट से उठा हुआ और एक हैंड से मैंने साइकिल को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। ओके, एंड आई एम पोइज्ड एंड डाउन द हिल, हियर द मीन ऑफ पोइज्ड दैट कॉन्फिडेंट। ओके, अभी बोला कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि वह हर रोज ही यही उसका गेम, मतलब यही है उसका गेम, वह डेली यही गेम प्ले करता है। ओके, फर्स्टली हिल के ऊपर चढ़ता है और फिर साइकिलिंग करते हुए नीचे आता है। ओके, क्योंकि वह हिली एरिया में रहता है, ये जो बॉय हिली एरिया में रहता है, तो इसका ये कि इसका गेम है जो वो रोज प्ले करता है। ओके, तो बहुत इसलिए वो बहुत ही पोइज्ड है, कॉन्फिडेंट है। क्लियर? एंड डाउन द हिल। ओके, और मैं हिल से नीचे आ रहा हूँ, तो बोला है कि आई एम पोइज्ड एंड डाउन द हिल, इट्स मीन कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं हिल से नीचे आ रहा हूँ। ओके, डार्ट विथ हीटफुल माइंड। ओके, डार्ट DART है द मीन ऑफ डार्ट दैट रस करना। ओके, तो बोले कि मैं रस कर रहा हूँ, एंड विथ हीटफुल माइंड। ओके, है द मीन ऑफ हीटफुल दैट अटेंटिव। ओके, तो ये बॉय बोल रहा है, बॉय इज स्पीकिंग दैट मैं रस कर रहा हूँ और मैं बहुत तेजी से साइकिल पर हिल से नीचे जा रहा हूँ। ओके, और मेरा जो माइंड है ना वो बहुत ही हीटफुल है, द मीन ऑफ हीटफुल दैट अटेंटिव, इट्स मीन बहुत ही अलर्ट है, मैं बिल्कुल ध्यान से नीचे आ रहा हूँ ताकि मैं गिर ना जाऊँ। ओके, तो स्टैंड से जो बॉय है इसने अपने फीट को, अपने पैरों को लिफ्ट करके रखा हुआ, उठा के रखा हुआ, इसके पैर लिफ्टेड है, उठे हुए हैं, और हैंड्स भी, हैंड्स ने इसके वन हैंड तो राइज है एयर में, एक हाथ तो हवा में उठा हुआ है, और इस ओनली वन हैंड से साइकिल के हैंडल को होल्ड किए हुए, अपनी साइकिल के हैंडल को पकड़े हुए, लेकिन बोल रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इसके बाद भी बोल रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, और एंड डाउन द हिल, ऑन हिल से नीचे आ रहा हूँ, डार्ट विथ हीटफुल माइंड। ओके, इट्स मीन कि मैं बहुत ही, मेरा माइंड अटेंटिव है, बिल्कुल ध्यान से मैं नीचे आ रहा हूँ। ओके, मैं रस कर रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से नीचे आ रहा हूँ ताकि गिर ना जाऊँ। द एयर गोज बाय इन अ विंड। ओके, द एयर गोज बाय, द एयर गोज बाय इन अ विंड। ओके, स्टूडेंट, हियर द मीन ऑफ एयर, एयर मीन्स होता है स्टिल एयर, इट्स मीन जो बहती नहीं है हवा, उसे बोलते एयर। एंड विंड मीन्स स्टूडेंट होता है, विंड मीन्स होता है बहुत तेज बहने वाली हवा। ओके, एयर एंड विंड दोनों का मीन होता है हवा, बट हेयर द मीन ऑफ, हेयर द डिफरेंट बिटवीन एयर एंड विंड, जो एयर और विंड के बीच में डिफरेंट होता है ना, वो ये होता है कि जो एयर होती है ना वो स्टिल एयर होती है, इट्स मीन स्थिर हवा होती है जो बहती नहीं है। ओके, एंड जो विंड होती है, ओके, विंड क्या होती है? विंड मीन्स होते हैं बहुत तेज बहने वाली हवा। ओके, जब हम फील करते हैं कि हाँ वो मतलब बहुत तेज एयर फ्लो कर रही है, तो वो होती है विंड। ओके, जब वो हम एयर को फील भी नहीं करते हैं ना कि हाँ एयर मतलब हवा नहीं चले, लेकिन फिर भी एयर होती है, तो एयर मीन्स होता है ना बहने वाली हवा। ओके, स्टिल एयर, स्थिर हवा, और विंड मीन्स होते हैं तेज बहने वाली हवा। ओके, तो स्टूडेंट्स, सिंस वो साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल से बहुत स्पीड से नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए जो एयर है ना वो सिर्फ विंड की तरह लग रही, बहुत तेजी से आती हुई फील हो रही है। ओके, तो let's see second number stanza of this chapter. Your second stanza is swifter and add more swift till the heart with a mighty lift makes the lungs laugh, the throat cry, oh bird, see bird I fly. Okay, swifter, it's swifter and add more swift, it means हो गया कि स्टूडेंट्स ये बोला कि swifter means तेजी से, और तेजी से। ओके, and means और, at means add more swift, it means तेजी से और तेजी से। ओके, वो साइकिलिंग कर रहा है। ओके, मतलब तेजी से और तेजी से वो साइकिल से नीचे आ रहा है, मोर स्विफ्ट मीन्स और तेजी से। ओके, एंड टिल द हार्ट विथ अ माइटी लिफ्ट, हार्ट मीन्स दिल। ओके, टिल मीन्स जब तक कि उसका जो हार्ट है बहुत तेजी से जोर जोर से धड़कना स्टार्ट नहीं करता है, धड़कता नहीं है। ओके, धड़कना शुरू नहीं करता है तब तक वो मतलब और ज़्यादा तेज साइकिलिंग करता है, और ज़्यादा तेज साइकिलिंग करता है। ओके, उसकी स्पीड फास्ट होती ही जाती है, इंक्रीज करती ही जाती है। मेक्स द लंग्स लाफ, द थ्रोट क्राई। ओके, अब ये स्ट्रांग बन जाता है, उसके जो लंग्स है ना, जो फेफड़े, वो बहुत जोर जोर से लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और बहुत ही खुश हो रहे हैं। ओके, सांस ले रहे हैं जोर जोर से, और जो उसके जो थ्रोट है वो क्राई कर रहे हैं। ओके, और जो थ्रोट क्राई कर रहे हैं वो बहुत खुशी से इसके थ्रोट जो है वो चीख रहे हैं। ओके, ओ बर्ड, सी बर्ड आई फ्लाई, और क्या बोल रहे हैं? इसके जो थ्रोट है वो बोल रहे हैं, खुशी से कहते हैं कि बर्ड मीन्स वो क्या, पक्षी। ओके, कि ओ बर्ड, अरे पक्षी, सी मीन्स देखो, सी मीन्स देखो, अरे पक्षी देखो देखो, पक्षी देखो, आई फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। ओके,
तो वो बोल रहा है कि ओ बर्ड सी बर्ड आई फ्लाई। ओके, इट्स मीन कि वो बोलता है कि उसके आसपास जो बर्ड होते हैं ना, तो वो उससे बोलता है कि देखो पक्षी, मैं उड़ रहा हूँ। ओके, तुम ही अकेले नहीं हो जो उड़ सकते हो, मैं भी उड़ सकता हूँ। ओके, clear? Let's see third number stanza, okay, which is last stanzas in our today's class. In this, is this your joy? Is this your joy, oh bird? Then I do a boy. For a golden moment, share your feathery life in air. Okay, I read again. Listen clearly. Is this your joy, oh bird? Then I do a boy. For a golden moment, share your feathery life in air. Okay. तो स्टूडेंट्स, अब ये बॉय बर्ड से आस्क कर रहा है कि उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें भी मतलब ऐसे जॉय फील होता है। इट्स मीन तुम्हें भी ऐसे ही खुशी मिलती है जब उड़ते टाइम, जब आप फ्लाई करते हो तो आपको भी वैसे ही जॉय मिलता है, वैसे ही खुशी मिलती है जैसे कि मुझे मिल रही। ओके, ओ बर्ड देन आई डू अ बॉय। ओके, बोल रहा है कि अरे हाँ पक्षी। ओके, ओ बर्ड देन मीन्स तब, आई मीन्स मैं, दो मीन्स यद्यपि, आ मीन्स एक बार मीन्स लड़का, ओ बर्ड देन आई डू अ बॉय। बोला कि अब वो वर्ड से बोलता है, बॉय कहते हैं कि ओ वर्ड, जबकि मैं एक बॉय हूँ, एक लड़का हूँ, एक पक्षी नहीं हूँ, फिर भी मैं उड़ पा रहा हूँ। ओके, आप फ्लाई कर रहे हो क्योंकि आप बर्ड हो, आपके पास फीदर है, पंख है, बट मैं तो एक बॉय हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक मतलब यदि भी मैं एक लड़का हूँ फिर भी मैं फ्लाई कर रहा हूँ, फिर भी मैं उड़ रहा हूँ। ओके, फॉर अ गोल्डन मोमेंट्स है। ओके, फॉर द गोल्डन मोमेंट्स है। गोल्डन मोमेंट मीन्स स्टूडेंट सुनहरे पल खुशी के। ओके, बॉय कहता है कि ये जो सुनहरे पल है ना खुशी के, वो मैं तुम्हारे तरह, ओके, जैसे तुम्हारे पास फीदर्स है ना, पंख है एयर में। ओके, तो हवा में उड़ने के लिए, हवा में फ्लाई करने के लिए, एयर में फ्लाई करने के लिए, ओके, उड़ने के लिए जैसे तुम्हारे पास फीदर है, फीदर्स है, पंख है, ओके, वैसे मैं भी हवा में उड़ पा रहा हूँ। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे भी फीदर्स हैं, ओके, जिससे मैं उड़ पा रहा हूँ। फॉर अ गोल्डन मोमेंट्स है। ओके, अब अपने गोल्डन मोमेंट को, अपने मतलब सुनहरे पलों के, अपनी खुशी के सुनहरे पलों को शेयर कर रहा है, उससे साझा कर रहा है वर्ड्स के साथ, और बोला योर फेडरी लाइफ इन एयर। इट्स मीन कि जैसे बॉय कहता है कि ये जो सुनहरे पल है ना खुशी के, वो मैं तुम्हारी तरह, ओके, जैसे तुम अपने फीडर से, पंख से, मतलब एयर में फ्लाई करते हो, ओके, हवा में उड़ते हो, वैसे मैं भी हवा में उड़ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास भी फीदर्स हैं, आई हैव फीदर्स, मेरे पास भी पंख है, मैं भी उड़ पा रहा हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, वी कैन सी इन दिस पिक्चर दिस बॉय इज लुकिंग वेरी हैप्पी। ओके, सच में बहुत ही ज़्यादा कुछ दिख रहा है। ओके, और हिल से गोइंग डाउन कर रहा है, हिल से नीचे आ रहा है। ओके, clear? The stanza we have read and explained summary first to third stanzas of this chapter 4, going down here on a bicycle boy song, and I hope you must have understood summary of these stanzas. You have no problem in these stanzas. Okay, so stanza we will definitely read remaining stanzas of this chapter 4, but not right now. We will read and explain summary of remaining stanzas of this chapter 4 in our next video. Okay, so now we are going to read and note down this poem of this chapter 4 in our Fire English Literature notebooks. Let's see this poem. Chapter number is chapter 4, and the name of this chapter 4 is Going Downhill on a Bicycle, a Boy Song. It means साइकिल पर हिल से नीचे आते हुए एक लड़के का गाना. Okay. With lifted feet and hands still I am poised and down the hill, dart with heedful mind, the air goes by in a wind, swifter and yet more swift, till the heart with a mighty lift makes the lungs laugh, the throat cry, oh bird, see bird, I fly. Okay, let's see summary of first stanza. With lifted feet and hands still. इट्स मीन कि जो बॉय है जो साइकिल पर है और हिल से नीचे आ रहा है, वो बोल रहा है क्या है कि मैंने दोनों अपने फीट को हवा में लिफ्ट किया हुआ है, एयर में मैंने अपने पैरों को लिफ्ट किया हुआ है, उठाया हुआ है दोनों पैरों को, और मेरे जो हैंड्स है ना उसमें से एक हैंड को मैंने अपना एयर में राइज किया हुआ, हवा में उठाया हुआ है, और जो सेकंड हैंड है उससे मैंने साइकिल को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है, उसके साइकिल के हैंडल को अच्छे से होल्ड किया हुआ है, पकड़े हुए हैंडल को। ओके, तो ये बॉय बोला है कि मैंने अपने पैरों को, दोनों पैरों को हवा में लिफ्ट किया हुआ है, ओके, हवा में उठाए हुए हैं, और वन हैंड को एयर में राइज किया हुआ, एक हाथ को हमने हवा में उठाया हुआ है, और सेकेंड हैंड से मैंने क्या किया हुआ है, साइकिल के हैंडल को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है। ओके, सेकेंड हैंड से साइकिल के हैंडल को पकड़े हुआ। आई एम पोइज्ड एंड डाउन द हिल। पोइज्ड मींस स्ट्रेंथ, हियर द मीन ऑफ पोइज्ड दैट कॉन्फिडेंट। बोल रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ बहुत ही, क्योंकि मेरा तो ये रोज का ही गेम है ना, मैं तो रोज यही गेम प्ले करता हूँ। फर्स्टली हिल पे जाता हूँ, हिल पे चढ़ता हूँ, और फिर साइकिलिंग करते हुए हिल से नीचे आता हूँ, क्योंकि वह हिल एरिया में रहता है ना। तो एंड डाउन द हिल, और हिल से नीचे आ रहा हूँ। ओके, आई एम पोइज्ड एंड डाउन द हिल, इट्स मीन मैं कॉन्फिडेंट हूँ और हिल से नीचे आ रहा हूँ। डार्ट विथ हीटफुल
हीटफुल माइंड, दैट मीन्स रस करना, हीटफुल माइंड मीन्स अटेंटिव। ओके, तो बोल रहा है वाई कि मैं रस कर रहा हूँ, मैं बहुत तेजी से साइकिलिंग मतलब साइकिल कर रहा हूँ, मैं रस कर रहा हूँ, बहुत तेजी से साइकिल पर हिल से नीचे आ रहा हूँ, और मेरा जो माइंड है वो बहुत ही अटेंटिव है, और इट्स मीन बहुत ही हीटफुल है, इट्स मीन मैं बहुत अलर्ट हूँ, बहुत ध्यान से नीचे आ रहा हूँ ताकि गिर ना रहा हूँ। इट्स मीन मैंने अपनी फीट को लिफ्टेड किया हुआ है, दोनों पैर को हवा में उठाए हुए, और वन हैंड राइज किया हुआ, वन हैंड से ओनली वन हैंड से मैंने साइकिल के हैंडल को होल्ड किया हुआ, लेकिन मैं फिर भी बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, पोइज्ड हूँ, क्योंकि मेरा तो ये रोज का ही गेम है ना, क्योंकि मैं हिल एरिया में रहता हूँ। ओके, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बहुत अलर्ट भी हूँ उसके साथ। ओके, एंड द एयर गोज बाय इन अ विंड। ओके, टू स्टैंड हियर द मीन ऑफ एयर दैट शांत हवा, इट्स स्टिल हवा। ओके, इट्स मीन ना बहने वाली हवा को एयर बोलते हैं, एंड द मीन ऑफ विंड इज दैट बहुत तेज बहने वाली हवा। ओके, एयर एंड विंड का मीन सेम होता है हवा। ओके, बट हियर द डिफरेंट बिटवीन एयर एंड विंड दैट कि एयर मीन्स होता है स्टिल हवा, ना बहने वाली हवा। ओके, एंड विंड मीन्स होता है बहुत तेज बहने वाली हवा। ओके, क्योंकि सिंस वो साइकिल से बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है, तो इसलिए वो जो एयर है ना उसे विंड की तरह लगी, बहुत तेजी बहती हुई उसे फील हो रही। ओके, let's see second stanza. Swift and at more swift till the heart with a mighty lift makes the lungs lofty throat cry, oh bird see bird I fly. ओके, तो स्टूडेंट्स तेजी से और तेजी से वो साइकिल से नीचे आ रहा है, मोर स्विफ्ट मीन्स और तेजी से, जब तक इसका जो हार्ट है वो बहुत तेजी से जोर जोर से धड़कना नहीं शुरू कर देता है और वो स्ट्रांग बन जाता है, तो उसके जो लंग्स है ना वो बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। ओके, बहुत ही खुश हो रहे हैं, जोर जोर से सांस ले रहे हैं, और जो थ्रोट है वो खुशी से चीख रहे हैं, साउट कर रहे हैं। ओके, ओ बर्ड, ओके, बोल रहे हैं कि ओ बर्ड सी बर्ड आई फ्लाई, बोल रहे हैं कि ओ पक्षी देखो मैं फ्लाई कर सकता हूँ। ओके, मैं उड़ रहा हूँ, तुम ही नहीं हो अकेले जो तुम उड़ रहे हो, मैं भी उड़ सकता हूँ। ओके, so stanza, I have explained you summary of both the stanzas and I hope you must have understood. Let's see the poet of this poem. Stanza, the poet of this poem is Henry Charles Beeching. Okay, the Henry Charles Beeching, he is the poet of this poem. Going down hill on a bicycle a boy song. जो इस पोम है हमारी Going down hill on a bicycle a boy song की जो पोम है, ये इसके जो पोइट है कवि वो है हेनरी चार्ल्स बीचिंग। ओके, तो स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन यू दिस पोम एंड आई होप you must have understood. So students, today's your classwork is that note down this 8-line poem of this chapter 4, Going Downhill on a Bicycle, a boy's song, as it is in your Fair English Literature notebook. It's a 2 days classwork, and your homework is that learn this 8-line poem of this chapter 4 from your Fair English Literature notebook. It's a 2 days homework. Okay, तो student आपका classwork है कि आपको 8 लाइन की poem as it is note down करनी है अपनी Fair English Literature के notebook पे. Firstly mention CW and after it date and after it chapter number, then chapter name and then chapter नेम के बाद आपको आफ्टर इट हेडिंग मेंशन करनी पोम एंड आफ्टर इट स्टार्ट राइट डाउन 8-लाइन पोम एंड लास्ट मेंशन पोइट नेम ऑफ दिस पोम। ओके, तो एज इट इज़ आपको राइट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक भी। आपका होमवर्क है, सॉरी क्लास वर्क है, एंड इसमें आपका क्लास वर्क क्या है कि आपको ये पोम 8 लाइन की पोम चैप्टर 4 की अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करनी है। आपका आज का होमवर्क है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स योर क्लास वर्क होमवर्क इज क्लियर ना? सो ऑल स्टूडेंट फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क. Note down this 8-line poem of this chapter 4, Going Downhill on a Bicycle, a boy's song, in your Fair English Literature notebook. And send me your work here. Thank you.